Good morning, students. Here we are on another lecture on periodic properties. In first lecture of periodic properties, we had discussed about that atomic radius and ionic radius. But here we are discussing about the very important ionization enthalpy. It is the amount of energy required to eject an electron from an isolated gaseous atom. Right? What is isolated gaseous atom? Here we are. Isolated means there is no force of attraction on that atom. उस एटम के ऊपर ये एक एटम रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कहीं से भी. सिंगल इट इज. Generally, that's why it is generally considered in gaseous state. So isolated gaseous atom हम कहते हैं, right? इसको कुछ एनर्जी यहाँ से अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कुछ एनर्जी आपको इससे देनी होती है और उस कंडीशन में इट विल कन्वर्ट इनटू कैटायन एंड lose electron. So this is called ionization. Formation of cation, I can say it is ionization, and the best definition of it is ionization enthalpy is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. Ground state means जो भी आप outer shell लिखते हैं, जो भी आप configuration लिखते हैं किसी एटम के लिए, जो भी आपने सीखा हुआ है अभी तक, दैट इज फॉर ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर में जा सकते हैं बट इट इज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट. इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल, दैट इज ऑलवेज एनर्जी यूनिट इट इज, राइट. If any atom lose one electron, that would be first ionization energy. Second electron, any ion lose, that would be second ionization energy. Third electron lose, that would be third ionization. So first, second, third, fourth, whatever they are called, successive ionization energies. And the total ionization energy is termed as overall ionization energy. Please note, it is very mandatory to remember that higher ionization enthalpy is always higher than lower ionization enthalpies. For example, second ionization enthalpy always higher than first ionization enthalpy, and third ionization enthalpy always higher than second ionization as well as first ionization energy. Why it is so? Very simple it is, because we had studied ionic radius. If any atom lose one electron, the number of proton would be same. Yes, let it is sodium and it is sodium ion. Number of the electrons, number of electrons are in outside the sodium is initially 11. Proton will be 11 proton. 11 electron is there, but in Na plus there is 10 electrons and 11 proton is still same. So in that condition, the force of attraction of nucleus increase. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाता है. तो इसीलिए हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है और लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल हायर से कम होता है. ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल में इस बात का आप याद रख सकते हैं. लोअर आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज स्मॉलर देन हायर आयनाइजेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Increase on ionization, that we know very well. Okay, so these are successive ionization energy, overall ionization energy, and higher will be higher or lower will be lower. Okay, this is ionization energy, right? Periodicity, how ionization energy trend in periodic table. What will happen? As we know, along the period, left to right, क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है along the period. Remember, because शील्डिंग में चेंज, हमने पहले भी बात की हुई, शील्डिंग में चेंज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज में चेंज ज़्यादा होता है, इफेक्टिव होता है, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज.
तो वो बढ़ता है, तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, शील्डिंग ज़्यादा बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, शील्डिंग ज़्यादा बढ़ता है। और शील्डिंग जब ज़्यादा बढ़ता है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर, कैन यू सी नाउ, दिस इज न्यूक्लियस। सो अगर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर शील्डिंग ज़्यादा बढ़ेगी यानी रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में जिस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ही फील कर रहा है उसको बाहर निकालना आसान होगा। तो आप जानते हैं नया शेल ऐड होता है तो शील्डिंग, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो है उस पर बढ़ जाती है। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं शील्डिंग बढ़ती जाती है और इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज कम होते जाता है। और उस कंडीशन में सॉरी मैंने फिर से वही टर्म यूज़ किया जो कंफ्यूज करता है, न्यूक्लियर चार्ज कम नहीं होते जाता, न्यूक्लियर चार्ज में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता डाउन द ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट जाने पर शील्डिंग इफेक्ट में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, राइट। बाकी बढ़ते दोनों ही हैं। तो बस लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज में सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है और उसके कारण से जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। डाउन द ग्रुप जाने पर शील्डिंग में ज़्यादा चेंज आता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है, जिसको रिपल ही कर रहे हैं आप हटाना ही चाहते हैं उसको निकालने में कितना समय लगेगा, yes or no? So I think it is very much clear to you. Now, so the first thing it is, right? Down the group, what happened? Along the period, what happened? You can see here, right? In this graph, you can also can see कि जैसे कैसे कैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज आता है। बाकी सारी चीज़ों को तो जानने में आपको समय लगेगा, लेकिन एक दो चीज़ें जो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यानी आप कह सकते हैं जो फर्स्ट ग्रुप मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है और जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। स्लाइट डिफरेंस हमें क्रिप्टन और जो है वो यहाँ पर थोड़ा देखने को मिलता है, बट अभी के लिए आप उसको दिमाग नहीं लगाना है, मैं आगे की चीज़ें आपसे शेयर करते जाऊँगा। बट रिमेंबर दिस, द थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं, मोस्ट जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसमें हीलियम, नियॉन और फिर फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी आर्गन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और आर्गन के बाद ऑक्सीजन आता है। रिमेंबर इट, right? Okay, so now we are on factors affecting ionization energy, right? So the one factor that we had discussed, nuclear charge. Other factor we had discussed, shielding effect or screening effect. The half filled and full filled subshell also affect nuclear charge. We had discussed here that along the period left to right effective nuclear charge increase तो ionization energy increase. This is general trend, but there is some exceptions also. यहाँ पर कुछ exceptions भी हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या एक्सेप्शंस हैं मैं आपको बताता हूँ। लाइक सेकेंड पीरियड एलिमेंट की हम बात करते हैं। चलिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट बताइए। सबसे पहला क्या है, लिथियम, ओके, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन इज 2s1, 1s2, 2s1, 1s2 आई एम नॉट राइटिंग, ओके। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p1, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 एंड नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6, isn't it? Okay, now let's see. General trend is while moving left to right along the period,
ionization energy increase. Okay, it means minimum for lithium, no problem. Then you can see this 2s2, the first electron will remove from, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इसमें S से निकलेगा और इसमें कहाँ से निकलेगा, P से निकलेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. किसकी बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं. राइट. एक जो छोटी सी चीज मुझे याद आ रही है, अदरवाइज मैं बाद में भूल जाऊंगा, तो मैं इसलिए पहले आपसे शेयर कर लेता हूं. यू कैन सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम आर low ionization energy elements, or we know they are highly reactive metals. It means low ionization energy is the criteria for reactivity of metals. Those having low ionization energy, more reactive. Those having high ionization energy, less reactive in metals. I'm talking about metals. Low ionization energy, more reactive metal. High ionization energy of metals, less reactive metal. Non metals की बात नहीं कर रहा. Non metals generally have high ionization energy, but they are reactive because उनकी हम इस तरीके से बात नहीं, because they are not tend to get oxidized. Okay. So here we are, factors affecting ionization energy. Half filled and full filled subshell डिस्कस अपन कर रहे थे, और उसी के बेसिस पर मैंने ये पॉइंट लिया हुआ था. वी आर गोइंग ऑन दैट पॉइंट, राइट. वी वर गोइंग ऑन दैट पॉइंट. सो हेयर लिथियम, ऑब्वियसली फर्स्ट आयनाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ओके. सो लिथियम, वन इलेक्ट्रॉन विल एस से निकलेगा. यहाँ पर देखिए वन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, एस से, और यहाँ पर कहाँ से निकल रहा है, पी से. रिमेंबर, the force of attraction on S subshell, nuclear force of attraction on S subshell is higher as compared to nuclear force of attraction on P subshell, right. Remember it is. So in this condition, boron ki ionization, so obviously the force of attraction is higher on these two electrons, so obviously to lose these electrons more energy required, so obviously ionization energy increase. So here it is 2s, here it is beryllium. The slight difference is there, not a so large difference कि बेरिलियम का कार्बन से भी ज़्यादा हो जाए, नहीं, क्योंकि फिर उस कंडीशन में न्यूक्लियर चार्ज भी रोल में आ जाता है. उसके बाद ऑब्वियसली कार्बन आ जाएगा, वहाँ कोई इशू नहीं है. नाउ यू कैन सी नाइट्रोजन हैव हाफ फिल्ड सबशेल, 1 2 3, बट ऑक्सीजन, दिस इज हाफ फिल्ड सबशेल इन नाइट्रोजन. कैन यू सी, half filled subshell, and in case of oxygen there is more than half filled subshell, 4 electron is there. Yes or no? So in that case it is easy to remove electron from here because it is a stable configuration. So in that case oxygen have less ionization energy as compared to nitrogen because of stability of half filled subshell. और उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, हमेशा इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा कि वो उससे आगे हो जाए, तो फ्लोरीन और नियोन एज इट इज. सो दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द ऑर्डर फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट. व्हाट इज इट ऑर्डर, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट. ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर. मैं यहाँ पर भी उसे मेंशन करना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेकेंड लिथियम, मैं यहाँ लिख देता हूँ IE1 इक्वल टू IE1, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट IE1, नोट अलग से लिख देंगे. ओके, लिथियम, देन लिथियम, आफ्टरवर्ड्स that boron, right, afterwards beryllium, then obviously carbon, then oxygen, then nitrogen, then fluorine, then neon, isn't it? So this is the order
of first ionization energy for second period element. Right? Question ऐसे आएंगे एग्जामिनेशंस में, why the ionization energy of nitrogen is higher than first ionization energy of nitrogen is higher than oxygen, why the first ionization energy of beryllium is higher than boron, because the general trend क्या है, बेरिलियम का बोरॉन से कम होना चाहिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कम होना चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और इसी तरीके से फिर वो आते हैं. राइट? सो हमें ये पता होना चाहिए. सो हेयर आई एम राइटिंग दैट ऑर्डर ऑल्सो. सो जब भी मैं आपको ये शीट, जब भी मैं आपको ये पीपीटी अवेलेबल कराऊं तो वहां पर ये होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हेयर. And it is the order of, remember, first ionization. Why I am saying first ionization energy? Because second भी हो सकती है, third भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? Yes or no? बिल्कुल हो सकती है. So that's why I am writing this first ionization energy, IE1. What I am writing here? IE1. Right? Shift IE and 1. Okay? Remember. So this is first ionization energy of second period element. Third period element में भी यही ऑर्डर होगा, वहां पर भी थोड़ा सा यही डिफरेंस रहेगा. what सोडियम, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन दैट सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन क्लोरीन एंड लास्ट में आर्गन. तो ये चेंज क्लियर हुआ सभी को, क्यों बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरॉन का? या सेम क्वेश्चन विल कम, व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन एल्यूमिनियम? सो हियर द आंसर इज इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम एस सबशेल. राइट? सो दैट इन मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम एस सबशेल, and in boron or aluminum electron ejected from p subshell. S subshell feel more nuclear charge, so it is difficult to remove electron from S subshell as compared to nearest p subshell. है ना? ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत दूर में, फिर तो कार्बन में भी p से निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ये डिफरेंस चलता है. एक चीज जो आपके बुक में नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं, बट आई एम शेयरिंग विद यू. व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी? अगर मैं इन्हीं के ऑर्डर की बात करूं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो अगेन आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फर्स्ट के कॉन्फ़िगरेशन लिखना. जैसे Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1s2. क्या हो जाएगा ये? दैट विल बी 1s2. आफ्टरवर्ड्स बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s1. बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s2. एक एक इलेक्ट्रॉन, जो हमने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, क्योंकि हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं. तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक आयन यूनि पॉजिटिव तो लेना पड़ेगा उनको. यस और नो? कार्बन विल गेट प्लस चार्ज, सो दिस विल बी 2s2 एंड 2p1. आप देख सकते हैं, वीडियो में भी देख लीजिएगा आगे पीछे करके, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा ही हुआ है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं. ओके. फिर कार्बन के बाद हम क्या लिख रहे हैं? कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन. दिस विल, नाइट्रोजन पर 1 प्लस आएगा, तो दिस विल बी 2s2 2p2. फिर नाइट्रोजन के बाद वी वुड कम ऑन, नाइट्रोजन के बाद क्या हो जाएगा? यस, इट इज ऑक्सीजन प्लस, सो दिस विल बी 2s2 2p3. इसके बाद फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड के ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 2s2 2p4. राइट? और नियोन के ऊपर क्या हो जाएगा? 2s2 2p5. तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इसका आयनाइजेशन एनर्जी. क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया. और किसके जैसा हो गया? हीलियम. मैंने बताया था ना, मोस्ट थ्री कौन कौन से होते हैं? हीलियम, फिर नियोन, और फिर हीलियम, फिर नियोन, और फिर क्या हो जाता है? हीलियम एंड फिर नियोन एंड फिर फ्लोरीन. ये 3 आते हैं. तो हीलियम के जैसा हो गया ना, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एक शेल ही कम हो गया इसमें. देखिए, पहले 2s1 था, अब 1s2 हो गया. एक पूरा का पूरा शेल कम हो गया, हीलियम जैसा हो गया. राइट? तो इसको सबसे ज्यादा हो जाएगा. नाउ अब इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से B प्लस इज ओके, मिनिमम हो जाएगा. देन अब देखिए, हेयर इज 2p1 एंड हेयर इज 2s2, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू P, सो दिस विल बी C प्लस. देन
then that will be B plus. Afterwards यहाँ देखिए n plus as it is आ जाएगा. Now ओ यहाँ पर देखिए हाफ फिल्ड है और यहाँ पर अलग कंडीशन है. सो इन दैट केस दैट वुड बी F प्लस कम हो जाएगा एंड O प्लस उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा और फिर नियॉन आ जाएगा और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, Li प्लस का, नियॉन प्लस और Li प्लस का. तो हम हमेशा ध्यान रखें, चाहे हमें थर्ड भी पूछा गया हो या जो भी आयनाइजेशन एनर्जी, कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर की बात भी हो तो सबसे पहले जब भी आपसे पूछा जाए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज़्यादा क्यों, तो दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा हो सकती हैं. एक, न्यूक्लियर चार्ज चेक कर लीजिए कहीं S और P का डिफरेंस तो नहीं है, S और D का डिफरेंस तो नहीं है. आगे के केसेस में भी आप पढ़ेंगे, जब भी इसके बारे में पढ़ेंगे डेफिनेटली जब भी आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी इस पर बात जरूर होगी कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड. तो इसका खास ध्यान रखेंगे और उसी बेसिस पर हम इसे बता सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शील्डिंग इफेक्ट तो है ही, न्यूक्लियर चार्ज तो है ही, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन the order of ionization energy. As I mentioned already, there are values also given. The beryllium is slightly higher than boron and oxygen, nitrogen slightly higher than oxygen for IE1, first ionization energy. I think it is very much clear to you now. Right? Here we are, one more important property that is known as electron gain enthalpy. As electron gain enthalpy is the amount of energy released, the amount of energy, the ionization enthalpy is the amount of energy required, but it is actually the amount of energy released or absorbed. Sometimes it may release, sometimes it may absorb during gain of an electron by an isolated gaseous atom or ion. यहां पर क्या करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के समय कई बार आपको एनर्जी देनी पड़ती है, कई बार आपको एनर्जी निकलती है. एक्चुअली व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आई एम शोइंग टू यू व्हाट हैपन. एक्चुअली आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर दैट दिस इज एन एटम, राइट. ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके शेल्स हैं. फर्स्ट सेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, वॉट एवर, राइट. न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन होते हैं वो तो है. ओके, नाउ इफ यू नीड टू इंटर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल ऑफ दिस एटम, एक इलेक्ट्रॉन आपको इंटर कराना है. जब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एटम के पास जाएगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कांटेक्ट में आएगा. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा. इनिशियली उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा. और अगर रिपल्सन होता है तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट आपको इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां, इट इज वेरी क्लियर, एक मैग्नेट रखा हुआ है S पोल और N पोल और दूसरा मैग्नेट आपके पास है N पोल और S पोल. तो आपको इस मैग्नेट को यहां ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली देनी पड़ेगी. यही कंडीशन तब होती है जब सेम चार्ज को, दो सेम चार्ज ऑब्जेक्ट हैं उन्हें एक दूसरे के पास लाया जाता है. तो इस कंडीशन में आपको एनर्जी देनी पड़ती है. ओके, अब इलेक्ट्रॉन आपने फोर्सफुली उसे एंटर करा दिया. अब एटम के पास ऑप्शन क्या है, एटम के पास ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन अंदर आया, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंदर आया, राइट. तो न्यूक्लियस ने उसे अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बांध लिया. इन दैट कंडीशन व्हेन दिस बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, इन दैट कंडीशन इट रिलीज सम एनर्जी, लेट इट इज x. सो जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया उसके बाद स्टेबलाइजेशन होता है और उस कंडीशन में एनर्जी बाहर भी निकलती है. So that energy is Y. So overall electron gain enthalpy actually the sum of x plus y. अब obviously y will be negative, so it means I can say, अगर साइन के साथ रखता हूं तो x minus y, because y will be negative. बाहर निकलने वाली एनर्जी है, yes or no, so y will be negative. So in that condition Eg is equal to x minus y.
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही होती है, कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ती है, कुछ बाहर निकलती है, उसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, नाउ सो आई थिंक वेरी मच क्लियर। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है और निकलती कम है, लाइक नोबल गैसेस में एनर्जी देनी ज्यादा पड़ती है, निकलती कम है, राइट? तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स में आप एनर्जी जो है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपको एनर्जी देनी कम पड़ती है और निकलती ज्यादा है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स और दैट नोबल गैसेस, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है। सेकेंड और उसके अलावा जितनी होती है सब पॉजिटिव होती है, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, इन ऑल एलिमेंट्स। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं सबकी सब पॉजिटिव होती हैं। सो हेयर यू कैन सी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में होता है वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज एंड ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। फर्स्ट वन will always be negative, others positive. फर्स्ट वन ऑलवेज नेगेटिव, लाइक कुछ एक्सेप्शंस को, जैसे नोबल गैसेस को आप छोड़ दीजिए, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए और नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, उनके अलावा बाकी सब में क्या होता है, फर्स्ट वन विल बी नेगेटिव। बाकी अदर्स जो है वो सबके लिए पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराने में इतना रिपल्सन होता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर कराना मुश्किल हो जाता है, right? So I think it is very much clear what is electron gain enthalpy. One term is also used for electron gain enthalpy which is electron affinity. इस टर्म को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इट इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन, जैसे जहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाएगी। एफिनिटी का मतलब कहीं ना कहीं बॉन्डेडनेस से होता है, बॉन्डिंग से होता है, कैन से, राइट? बॉन्डिंग कितनी अच्छी, दो लोगों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। एनर्जी का टर्म नहीं है ये एक बॉन्डिंग का है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना मतलब वो एनर्जी का टर्म है। अल्टीमेटली हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोइंग द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा रखता है। इट हैज मोर कैपेसिटी, मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ और टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, सॉरी अट्रैक्ट नहीं, टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, राइट? लेकिन ये टर्म थोड़ा सा साइन के ऑपोजिट, ये बॉन्डिंग को शो करने वाला टर्म है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन भी दिया गया है इनके लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। सो इस पे बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इट इज सिंपली इट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? Here I am with the periodicity of electron gain enthalpy. You can see not general trend. I am just sharing a general trend along the period. As we know, this general trend, there are many exceptions of this general trend. So simply electron gain enthalpy increase along the period left to right, and down the group electron gain enthalpy decrease. अब it is very much clear now. हम जानते हैं कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में सिग्निफिकेंट चेंज आता है, सिग्निफिकेंटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो तेजी से अंदर खींचेगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आपको एनर्जी देनी पड़ रही होगी, यानी यहाँ का x कम हो जाएगा और y स्टेबलाइज करने के लिए जो एनर्जी निकलती है वो रिलेटिवली ज्यादा हो जाएगी। सो अलोंग द पीरियड जाने पर जनरल ट्रेंड जो है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, क्योंकि शील्डिंग ज्यादा हो रहा है। शील्डिंग ज्यादा हो रहा है मतलब रिपल्सन ही, जो इनर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपल ही ज्यादा कर रहे हैं,
और जब वो रिपल कर रहे हैं तो आएगा कैसे इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली, यस और नो। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से इसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। सो ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन कंडीशन अगर आप देखेंगे तो जनरल ट्रेंड पूरी तरह से फॉलो नहीं होते हैं। राइट, आई हैव सम एग्जाम्पल फॉर इट, सो यू कैन सी हियर, दिस इज द ट्रेंड, यू कैन सी, यहाँ से यहाँ जाएंगे फ्लोरीन, और ये देखिए पॉजिटिव आ गया। यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। रिमेंबर, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। चलिए, मुझे लग रहा था कि सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आई हैड चेक्ड, बट शायद मैंने और ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप देखेंगे तो बाकी सब जगह इंक्रीज होता है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। पहली चीज, नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा जीरो होती है, पहला एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक्सेप्शन ये होता है कि जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर शायद यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जरूर लिखता हूँ बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो इसमें आपने ये पॉइंट्स तो देखे हैं, बट मैं कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी ऐड दोज पॉइंट ऑल्सो। सो वन इज दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन gain enthalpy for nitrogen almost zero। पहली चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नाइट्रोजन ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का। पहली बात हो गई हमारी, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। क्यों होता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो? इसलिए होता है बिकॉज ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड सबशेल, and if it is half filled subshell, it is a stable configuration, and if it is a stable configuration, it is difficult to enter an electron in a stable configuration, isn't it? So इसीलिए उसका जीरो होता है। And here is given the electron gain enthalpy for inert gases is positive. Why it is so? Because the noble gases has again a fulfilled subshell, stable configuration. It is difficult to enter an electron in a stable configuration, right? So half filled and full filled, एक तो या तो जीरो हो जाएगा हाफ फील्ड में, एंड फुल फील्ड में क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। मतलब आपको एनर्जी देनी ज्यादा पड़ रही है, निकल कम रही है। ओके ओके, द सेकेंड इज, आप मुझे रीजन बताइएगा जल्दी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, कौन से ग्रुप है भाई? सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जीरो, is zero. Second group elements, electron gain enthalpy of second group elements is zero. Okay, the second point हमारा क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको। क्यों होगा भाई इसमें? बिकॉज अगेन एस सब शेल के बाद पी में, अगर आप सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को देखें और वहां पर इलेक्ट्रॉन अगर इंटर कर रहा है तो एस सब शेल के बाद वो पी सब शेल में इंटर करेगा, और एस सब शेल उस पी सब शेल के ऊपर बहुत ज्यादा रिपल्सन लगाएगा। एस के इलेक्ट्रॉन्स पी पर रिपल्सन लगाएंगे, शील्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशंस में वहां इलेक्ट्रॉन इंटर कराना मुश्किल होता है। एक और खास बात होती है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी मैं लिख सकता हूं ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं सिंपली अब लिख रहा हूं ई जी, राइट। ई जी फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑलवेज हायर देन, थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑलवेज हायर देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ओहो, इट इज वेरी बिग एक्सेप्शन नाउ, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? आपसे तो बात, जबकि अपन ने क्या कहा था यहाँ पे, व्हाट आर स्टेटमेंट्स आर, कि नीचे जाने पर तो डिक्रीज होता, बट यहाँ तो कुछ और ही बात हो रही है। और यू कैन सी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं आप, ये देखिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट फ्लोरीन है 328, 349, 141, 200, राइट, 60, यहाँ 53। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत होगा, लेकिन मैं पी ब्लॉक में कह देता हूँ, है ना, तो आप स्टेटमेंट और प्रिसाइज होता है। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक तो बहुत आसानी से हमारा जस्टिफाई होता। क्यों होता है? पॉइंट ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज, खासकर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज काफी छोटा होता है। यहां ध्यान दीजिएगा इस चीज को, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज जो है वो काफी छोटा देखने को मिलता है, बहुत स्मॉल साइज होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, राइट। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। थोड़ा सा मैं अच्छे से बना लेता हूँ, ये न्यूक्लियस, ये पी ब्लॉक, एक शेल, दूसरे, ये सेकेंड शेल, ऑब्वियसली सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड शेल हो। तो इनका साइज क्या होता है? काफी छोटा होता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन अगर इसी के अंदर छोटा साइज है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उस कंडीशन में अगर पी ब्लॉक में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 3 से शुरू होता है, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ही, यस और नो। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आप आ रहा होता है उस इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, सो हेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इतना स्मॉल साइज होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और यहां इंटर करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, और जो एनर्जी है निकल रही होती है वो कम हो जाती है। आई कैन से कि जो एनर्जी निकल रही होती है वो तो ठीक ठाक होती है, बट जो एनर्जी एंटर करने के लिए आपको देनी पड़ती है उस that amount which is emitted, the evolved energy, the some part of evolved energy is used to maintain in न्यू इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं, है ना, कि जब इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है, इंटर कर गया तो एनर्जी भी बाहर निकल रही है, ओके, लेकिन इतना छोटा साइज होता है कि जो एनर्जी बाहर निकल रही है इसका भी कुछ अमाउंट इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट खर्च हो जाता है, और इसके कारण से उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, टोटल ग्रॉस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाती है। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें, इस तरीके से बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी यही होता है। तो इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ सेकंड थर्ड स्टेटमेंट? द रीजन इज some part of evolved energy in the form of electron gain enthalpy is used to maintain new electron against the interelectronic repulsion in atom. This is the reason, and that's why हमेशा याद रखिएगा, it is fixed. ये बात अलग है, कुछ केसेस में इसके बाद भी कम होते जाता है, जैसे यहाँ तो यही कंडीशन है। आपसे पूछा जा सकता है why the electron gain enthalpy of फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, बट यहां देखिए ऑक्सीजन की कितनी कम हो जा रही है, तो इट इज अगेन ड्यू टू द स्मॉल साइज। तो ऑक्सीजन के बारे में पूछे या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो दो चीजें उसमें अपने को मेंशन करनी है, वन इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट or small size of fluorine or small size of sulfur, and the second point is some part of evolved energy is used against
inter-electronic repulsion used to manage new electron against inter-electronic repulsion, right? So इस basis पर हम ये बता सकते हैं. These 3 points are also the exception conditions. There are some more exceptional condition, but ये 3 इन पर questions भी होते हैं, and I'll ask those questions to you also in exams as well as in class, right? Be ready for that. Thank you for today.